Okay, welcome all guys. Yeah, so let's continue, right? So in the yesterday's lecture, we have seen some of the questions and terminology related to that. So first question we covered, what is software testing, right? Inside software testing, we covered a different terminologies, right? Then a second question we have seen, like what is software quality, right? Okay, and hello, घरी का hello, दुकानात shh, guys. काय What I will do now, okay, okay, while explaining I will keep all you on mute, okay, and at the time of Q&A will unmute, okay, fine, chalo. Okay, so yeah, in the yesterday's lecture, first question we have covered, that is the what is software testing, and below that we have a discussion on that, right? Second question we have seen, like how we can define the software quality, right? So these are the somewhat parameters, okay, which we have covered. Okay, next question, like we have seen what is project, what is product, right? That we have covered already. Project is nothing but service based companies having their different client base, and the software which is developed based on client need, we generally called as a project, right? And the software which is developed based on market need, we generally called it as a product, software product, right? Next question we have covered, like why do we need to test the software, right? So in that situation we have covered some of the points, like in order to ensure the software quality, in order to ensure whether it is meeting the require client requirement, मतलब जो भी client ने requirement दी है वो match up हो रही है या नहीं, right? And in order to ensure कि like उसमें कुछ functionality में changes नहीं है, जो बोला था वही हमने develop किया है, right? मतलब उसमें कुछ बग नहीं है as such, right? जो फंक्शनैलिटी को ब्लॉक कर सके। बेस्ड ऑन दैट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज एरर, व्हाट इज डिफेक्ट, बग एंड व्हाट इज फेलियर, राइट? एरर इज नथिंग बट टाइपिंग मिस्टेक और syntactical mistakes. Then bug we have seen, it's a deviation in actual and expected behavior. And third thing we have covered, that is failure, when any application is in production, actual real time users are using it, and at that time if there is any unexpected output, so in that situation we generally called it as software failure, right? Next question we have covered, like why the software has a bug. Some of the points we have already discussed here, like miscommunication, then software complexity, programming errors, changing requirements, and lack of skill tester, right? So these all points guys we covered till the yesterday, right, in the yesterday's lecture. So today we are targeting on the different roles which are involved inside the team, right? So in the previous lecture, as we have seen, like team formation is going on inside the organization once any project get allocated, right? So in the team there are different members available, right? So I will copy just here and I'll try to explain in a detailed manner, okay? So here we are discussing about the team formation, okay? Voice clear guys, right? Hello, can someone Yes, please sir. confirm? Okay, fine. Thank you. Yes. Yes, Okay. yes. Yeah. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. Okay. No issue. Thank you. Okay. So now we'll see team formation. So within an organization, project is already onboarded. मतलब organization में अभी project आने वाला है या project अभी just now मिला है, right? तो in that scenario, they'll be forming a, okay, they will be forming a team, right? They will be forming a team. So inside team there are different members available, right? First one is your project manager who will be managing the project, right? Okay, one more person is important here, that is BA, business analyst, okay? Yesterday we have talked a little bit on this, right? Business, and let me reshare once, actually someone, okay, one more person is available in the team, that is the business analyst. I'll be explaining in a detail, okay? So yeah, another person is your technical team lead from the either
it could be from development side or testing side. A team lead who is managing the team. Then in a team there are multiple developers as well as testers. Then we have a DevOps engineer. Okay, I'll be explaining more on this. And we have technical engineer, or we can say technical writers. Okay, for documentation work and all. Okay, so likewise this role will be optional for now. Assume only these roles. Okay, one project for any particular project, जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, देन एक बिजनेस एनालिस्ट रहेगा. इनका काम क्या है हम देखने वाले हैं. देन एक आपका टीम लीड रहेगा. ओके, टीम लीड रहेगा. सो डेवलपर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज डेवलपर रहेंगे. राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 डेवलपर्स हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट उसका स्कोप कितना है, कितने लेवल पे टेस्टिंग चाहिए, राइट, उसके हिसाब से क्या रहेगा, नंबर ऑफ टेस्टर्स रहेंगे. एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बिल्ड के रिलेटेड है उसके लिए क्या चाहिए हमें, डेवऑप्स टीम चाहिए. राइट, हु विल बी मैनेजिंग द अदर, will be managing the network infrastructure. Okay, or IT infrastructure. Okay, so as of now consider these 3 members, 3 plus 3 6, 7 8 and 9. Okay, and one or two members are optional depending upon the organization structure. Like I have written technical writer. Okay, okay, likewise technical writer or design specialist, or your system architect. Okay, like I will count it as 2 for now. Okay, so that you'll have clear understanding. Technical writer. Okay, then system architect. Okay, fine. Likewise both will be in a single number. Okay, right, see. Okay, so yeah, this kind of is the structure of your team. So basically some of the persons are optional, like your technical writer, like your developer can be a senior developer can be a system architect, right. Likewise the people will get reduced in a number depending upon type of your organization. So for now how many peoples are there, 3, then 6 7 8 9 10 and 11, right. So for now, total 11 people are there, right? So out of that, like if the technical writer is not there, so in that scenario, a team of 10 member will be there. A system architect is not there, so in that case, a team of 9 member will be there. Okay. So for any manager is the first person. Okay, who will be managing all entire team. Okay. So now we will see roles of particular person. Okay, so first person comes in a picture from the client side, that is the business analyst. Okay, we'll talk more about the business analyst. We'll go one by one. Okay, what all are the responsibilities, मतलब business analyst का काम क्या है, उनका role क्या रहता है within an organization, that we'll be discussing more. Okay, yes, let me just pull some points over here. Okay, fine. सो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हर एक पर्सन का वर्किंग रोल क्या रहेगा. अगर ये एक टीम में हम काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जिस भी टीम के साथ काम कर रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. सो बिजनेस एनालिस्ट, राइट, दैट इज इन शॉर्ट हम उसको क्या बोलते हैं, बीए. ओके, राइट. ओके, चलो लेट्स डिस्कस. ओके, सो व्हाट आर द like some, what are the 3 main roles of business analyst, what are the some of the important roles of business analyst. Out of that आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वो, like in generic. Okay, what are the roles of business analyst. Okay, like who will be the business analyst, are you coordinating with the business analyst. So in that scenario आपको पता होना चाहिए कि business analyst का काम क्या होता है at actual project में. Okay, so first point is understanding the requirement of business. Okay, सो इस पे थोड़ा बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्या है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
as per the requirement. Okay, कैसे? For example, हमने जैसे on the above example लिया था, Infosys is the software company, right? Infosys is the service based software company and SBI is their client, right? SBI is the client. Okay, and for this client, this particular mm, entire team is working, right? For this above team one is working, okay, on this project. So from this team one, business analyst will be the main point of contact who will be coordinating with the ESBI persons, okay, for what? For understanding the requirement. For example, ESBI को क्या चाहिए? एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए या वेबसाइट चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ चीजों का डॉक्यूमेंटेशन का काम करने का कौन कौन काम करेगा? बीए, दैट इज द बिजनेस एनालिस्ट देखेगा इन चीजों में। ओके, सो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा इसका, या यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होगा, उसको हम बोलते, लाइक उसी का उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, उसको बोलते हैं योर बिजनेस, BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव। ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट, योर बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, इसी को पैरेलल वर्ड है BRES, इस फॉर एग्जांपल इसी को आप CRES भी बोल सकते हो। ओके, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, रिस्पेक्ट वाइज, मतलब कस्टमर, क्लाइंट, राइट, CRS भी होता है, राइट। सो लाइकवाइज जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, कि क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट शेयर की, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाने का काम कौन करेगा? BA करेगा, इन टर्म्स ऑफ योर BRD और इन टर्म्स ऑफ योर, राइट, CRS और BRS, इसी का पैरेलल वर्ड भी हो सकता है BRS। ओके, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, likewise your CRS means your customer, or we can say generally client requirement specification. Names can be different but meaning is the same, specification document. Okay, likewise. Okay, so the first documentation we used to refer for the requirement is the your BRD or BRS document, or we can say CRS document. Okay, all the meaning is same, fine. So in this document, इसमें क्या होगा basically, जो भी client ने requirement बोली है to the BA, right, from team 1 who will be coordinating, BA will be coordinating with client, right? So whatever the requirement given by the client, BA will be documenting into the BRS or BRD document, right? Okay, fine. So see, yeah, this one is the one of the type of document. Next one is to check possibilities of the system. Okay, leave it. The simple one statement will try to cover up here. Okay, still people are joining. Okay, let me check one more time. Yeah, fine. Okay, presentation and public speaking. Why? Because the BA always in touch with clients, so they always need to share presentation with the client. They always need to have calls with the other development team, right, testing team, different internal team. They also have to take the presentation, they also have to demonstrate the presentation, and public speaking skills are required for the BA role. Okay, and then elaborating the details of project, means they know the from the requirement side all about the project. Why? Because client is directly telling requirement to the BA, right? So they are the first point of contact from the from our organization side, so they will be having more knowledge on the business side. Supports the project implementation, like how project is supposed to carry forward, how project is supposed to drive, that all things will be decided by your BA. Then functional requirement and non-functional requirements. So we'll talk here about the functional and non-functional requirement. For example, we need to build a, for example, on functional side,
Okay, we need to build a simple calculator application, right? So in the calculator we are doing addition. For example, in case of calculator we are going to do first function. हम फर्स्ट फंक्शन जो है वो एडिशन का बना रहे हैं, राइट? सो इन एडिशन फंक्शन हमें एक्सपेक्टेड क्या है? 2 + 2 = 4 एक्सपेक्टेड है, फॉर एग्जांपल, राइट? सो ये जो है, दिस वन इज योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट. वी जनरली से like BRD, BRS या EFRS as well. Okay, EF EF stands for your functional requirement. I will write the parallel word as well. Functional, okay, requirement, requirement, specification, specification, document. Okay, so these are somewhat common words used for this documentation. Okay, so we like we are building the calculator app. In the calculator app we are building one addition functionality. Okay, so this one is the functionality which is given in the requirement, right? सो अपार्ट फ्रॉम, मतलब हम एडिशन के सिवा भी उसका मल्टीपल टाइम सेम कीज का, मतलब मल्टीपल टाइम हम उसका इटरेशन करके टेस्टिंग करेंगे, राइट? उस पे लोड रहेगा, उस पे मल्टीपल यूजर एट ए टाइम काम करके देखेंगे वो एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका यूआई कैसा है, राइट? सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर चेक किए जाते हैं इन केस ऑफ योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. मतलब जिनका परफॉर्मेंस से रिलेशन है उसको हम बोलेंगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, राइट? मतलब उसका लुक एंड फील कैसा है, उस पे कितने एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ यूजर्स वो पर्टिकुलर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, उस पे अगर एट अ टाइम सर्टन हाई अमाउंट ऑफ यूजर्स ने उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो सेम आउटपुट मिलेगा क्या, एप्लीकेशन क्रैश होगा या नहीं होगा. सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो पार्ट है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बेसिकली कवर होता है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीन्स वॉट एवर मेंशन बेसिकली in the document, as well as it is related to the core behavior, right? It is related to the feature of particular application. Okay, so this is what the functional requirement, and non-functional is the performance related requirement. We'll going to see into the depth in upcoming sessions. Okay, so as of now consider two type of requirements are there. One is functional and another one is non-functional. Okay, functional means its core functionality and non-functional means its performance, like how many users can access at a time, can we increase the certain number of users, can we decrease the certain number of users, load, trace, these keywords will come in a picture. Okay, yeah, for now forget about this. Yes, this one is the important. Technical writing, decision making and problem solving, these are the somewhat roles and responsibilities of BA. So main role is to collect the requirement from customer, right? To collect the requirement from client. This one is the main role of your BA, business analyst, right? Yes, so this one is the first role. Okay, who will be like, this one is the first person who will be directly in touch with your client, right? So yeah, let's discuss about the second person from the team, that is your project manager, right? So yeah, I'll try to pull, okay, I'll try to pull some key points for the manager over here, and then we'll have a discussion. Okay, okay, fine. See, okay, what do you yeah, project man, what do they do actually? Okay, and what are their keys, roles and responsibilities? Okay, okay, fine. Okay, so see, first one, activity and resource planning. Okay, activity and resource planning, it means, for example, in a team there are 10 members, including like 11 members are there, right? So like which member is going to work upon which task, right? How many peoples are needed for testing, how many peoples are needed for development, how many persons are needed for managing this project, right? Managing the different IT operations. So all this will cover under your resource planning. Resource planning is nothing but how many peoples are required in order to complete the
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, एसबीआई का जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है विद इन अ इन्फोसिस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल हमें कंप्लीट करना है विद इन अ 1 ईयर। सो फॉर दैट रीजन हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए इन अ टीम, लाइक डेवलपर कितने चाहिए, सिस्टम आर्किटेक्ट कितने चाहिए, उसका जो भी रिसोर्स प्लानिंग रहेगा ना, वो पर्टिकुलरली मेन टास्क रहेगा फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर साइड। ओके, ये हो गया वन ऑफ द एक्टिविटी, राइट। सेकेंड एक्टिविटी है लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द प्रोजेक्ट टीम। मतलब प्रोजेक्ट की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है वो डेडलाइन, देन प्रोजेक्ट में आपका जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो विद क्वालिटी होना चाहिए, टीम में बराबर से कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए ना प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलवेज इन टच विद टीम, मतलब वो डेवलपर के भी इन टच रहता है, टेस्टर के भी, हर एक पर्सन के वो इन टच रहता है, सो दैट प्रोजेक्ट में जो भी ब्लॉकर्स है या प्रोजेक्ट में जो भी डिफिकल्टीज फेस हो रही है टीम को, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टीम इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल। ओके, next bullet point is controlling the time management, right? As I previously explained, project deadline, for example project is signed for a 1 year, right? And we have decided to deliver project within a 1 year. So in that situation, like we are having cycles and we are delivering the like functionality of software in a cycle. Okay, that part will be coming next. Okay, as of now understood, please understand, controlling time management means when like particular software needs to be present in front of client, like when we have to make a changes, all related to time decisions made by project manager, right? Okay, so that is why we need to report to our manager on either it could be on daily basis, weekly basis, लाइक व्हाट इज आवर फॉर्मेट और प्रोसेस, हमारी जो भी कंपनी में प्रोसेस रहेगी उसके हिसाब से हम रिपोर्ट करते रहेंगे टू द मैनेजर। ओके, जो भी वर्क की प्रोग्रेस है उस पे, ठीक है। वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर का रिसोर्स प्लानिंग में, organizing and motivating the project team, then controlling the time management, then cost के related जो भी decisions रहेंगे, cost estimation and developing the budget, okay, related to the particular project, उसमें उनका more involvement रहेगा, right? Then sorry sir, then ensuring customer satisfaction, it is also one of the key point, right? अगर customer खुश नहीं तो next time हमें काम नहीं देगा, right? In a similar way, वो भी point उनको check करना पड़ता है। Analyzing and managing the project risk, मतलब for example एक project में 3 developers है और 2 testers है, in any emergency situation like there are 2 developers are absent, right? So what is the प्लानिंग, व्हाट इज द रिस्क प्लानिंग, इट ऑलवेज कम्स इन अ पिक्चर। मतलब जो भी रिसोर्स प्लानिंग रहेगा प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो भी चैलेंजेस रहेंगे, उसका एनालाइजिंग एंड मैनेजमेंट जो भी रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। एंड एट द एंड ऑफ डे मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, राइट। मतलब डे बाय डे टीम कैसी वर्क कर रही है, राइट। उनको कुछ चैलेंजेस है क्या, डिफिकल्टीज है क्या, क्लाइंट साइड से कुछ चाहिए क्या, कंपनी साइड से कुछ चाहिए क्या, वो सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, project manager. So these are the some common responsibilities for your project manager in case of company. So yes, this is about the project manager, one of the member of your team, right? जब भी आप कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए देखोगे ना, तो इसमें से हर एक मेंबर के साथ आपका कभी ना कभी इंटरेक्शन होगा, राइट? सो दैट आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर का क्या काम है, राइट? So likewise we have covered project manager and BA. Okay, and like team lead is nothing but managing the uh, developer team, managing the testing team, right? And then later on he is reporting to the testing project manager. Okay, so we'll discuss about the team lead as well. कई कई केस में है ना टीम लीड नहीं होता, सो इन दैट सिचुएशन प्रोजेक्ट मैनेजर ही सारा कुछ हैंडल आउट करता है, राइट। टीम लीड इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन जो भी प्रोजेक्ट की नीड रहेगी ना, उसमें कई बार है ना सीनियर जो पर्सन रहता है ही विल बी लीडिंग द टीम, राइट। फ्रॉम डेवलपमेंट साइड एक रहता है, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लीड हो सकते हैं। एक आपका डेवलपमेंट लीड, ओके,
मतलब जो कोडिंग जिसको पता है टू द पॉइंट, मतलब जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर था, अभी वो सिमिलर प्रोफेशन में विथ एक्सपीरियंस क्या है, अभी पर्टिकुलर 3 बंदों की 4 बंदों की जितने भी डेवलपर्स है उनकी टीम लीड कर रहा है, राइट। डेवलपर साइड से रहेगा डेवलपमेंट लीड, ओके। टेक्निकल लीड भी बोलते हैं बेसिकली, ओके। डेवलपमेंट लीड हो सकता है, और योर टेस्टिंग लीड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट। टेस्टिंग लीड भी हो सकता है, मतलब आपके प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ टेस्टर ज्यादा है तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए टेस्टिंग लीड भी हो सकता है, राइट। सो दिस पर्सन कोऑर्डिनेटिंग विथ योर डेवलपर्स, दिस पर्सन कोऑर्डिनेटिंग विथ योर टेस्टिंग टीम, और दोनों का कॉमन भी हो सकता है, राइट। मतलब नॉट नेसेसरी कि दो डिफरेंट रोल होने चाहिए, राइट। सिंगल person can handle both the team development as well as your testing team, right? So yeah, this is on the team leaders, technical team, okay. He will be managing the team, okay. Okay, and later on he will be also reporting to the project manager, okay. So yes, and the next person is the developer, okay. So yeah, next person is the developer, okay. So these developers are responsible, these developers are responsible for writing the code, okay. These developers are responsible for writing the code, okay. ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो भी प्रोग्राम्स हैं, राइटिंग कोड और राइटिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, राइट, डेवलपर्स जो है, ओके फाइन। देन लेटर ऑन डेवलपर्स के अगर आप टास्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो these are some of the responsibilities, ओके। डेवलपर एंड से हमें सिर्फ पता होने चाहिए, वी आर नॉट गोइंग टू इन डेप्थ, ओके। सो डेवलपमेंट साइड से मेन क्या है, देखिए, वर्क विद डेवलपर्स टू डिजाइन एल्गोरिदम, मतलब डेवलपर का मेन काम क्या है कि जो अदर्स डेवलपर है उनके साथ मिलके काम करना है इन ऑर्डर टू डिजाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इन शॉर्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रोग्रामिंग में क्या लॉजिक हमें लगाना है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डेवलपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने रिक्वायरमेंट तो दी है 2+2 4 आना चाहिए, बट प्रोग्रामिंग में उसको कैसे इनकोड करना है, प्रोग्रामिंग में उसको कैसे बिजनेस लॉजिक देना है, राइट। वो काम कौन करता है, तो डेवलपर करता है, राइट। उसका लाइक डिफरेंट टास्क क्या है, देखिए, प्रोड्यूस क्लीन इफिशिएंट कोड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेवलप, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम कौन करेगा, डेवलपर करेगा। अभी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर काम करने वाला कौन है, डेवलपर है। सो डेवलपर के पास जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज योर सॉफ्टवेयर, ओके। यहाँ पे जो आता है दैट इज योर एक्चुअल, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, ओके। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, जो भी आपका बीआरडी था, राइट, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इसी का, सॉरी यहाँ पे ये वर्ड नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। ये यहाँ पे आप डिफरेंट करते हैं इसको, सो दैट you'll हैव मोर क्लैरिटी, ठीक है, ओके। सो ये जो भी बीआरडी डॉक्यूमेंट था, क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट बताई और पर्टिकुलर बिजनेस पर्सन ने जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की, उसका नेक्स्ट वर्जन होता है ईएफआरएस, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, एक्चुअल कोडिंग करेगी, राइट। सो बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, काइंड ऑफ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन होता है। द रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल is for 2 okay, 2 plus, okay, is for 2 plus 2 is 4, likewise just an example guys, okay। इसके डॉक्यूमेंट्स भी है, हम अपकमिंग सेशंस में ये भी देखने वाले हैं, ओके। अभी एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड करने के लिए द इस प्रकार से फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट, ओके, क्या द रिक्वायरमेंट इज फॉर 2+2 is 4। सो ये हो गया आपका बीआरडी, ये हो गया आपका बीआरडी डॉक्यूमेंट। इसी को डेवलपमेंट टीम को
कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में चाहिए. सो इन दैट सिनेरियो एग्जांपल कैसा रहेगा, 2 plus 2, 2 is a numeric number, 2 is numeric number, addition of two numeric number should be 2, should be 4, likewise. And likewise, right? And developer will be coding this based on the requirement like this. See, int, for example, int a is equal to, this is a code for any specific language. Okay, just ignore it, I am just for understanding explaining here. Okay, मैं just आपको समझने के लिए बता रहा हूँ. Okay, for example, c is the variable and a plus b we are doing in a program, and later on we are printing. Okay, we are printing c, for example. Okay, c. यहाँ पे हमें क्या समझना है, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, बीए ने जो भी कलेक्ट की रहेगी विद इन बीआरडी, रिक्वायरमेंट काइंड ऑफ प्लेन इंग्लिश में रहेगी, राइट? जो मतलब कोई भी नॉर्मल बंदा समझ सकता है. लेकिन जो भी डेवलपमेंट टीम है, उनको जो भी वर्क करना है, राइट, सो उनके लिए तो टेक्निकल चाहिए, क्योंकि डेवलपर आर द टेक्निकल पर्संस, राइट? उनको डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल चाहिए. तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, राइट? EFRS. ओके, EFRS इसी का नेक्स्ट वर्जन रहेगा. बीआरडी के ऊपर ही जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उसी के ऊपर जो थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? EFRS, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, राइट? एंड बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट डेवलपर क्या करेगा? रे, बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट डेवलपर कोडिंग करेगा. ये हो गया उसका प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल. ओके, प्रोग्राम या कोड, राइट? सो ये काम किसका है? डेवलपर का है. लाइकवाइज, based on the requirement document, that is functional requirement document, developer will be coding the program. Okay, ये requirement थी basically from BRD. ये उसका थोड़ा टेक्निकल फॉर्म बन गया, राइट? एंड लेटर ऑन डेवलपर ने उसको क्या किया? एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, राइट? ठीक है. So these are the somewhat main responsibilities from development side. Another responsibilities, see guys, like work with to design algorithm and flowchart. For now skip this one. Okay, so main purpose is to produce clean code. Okay, then efficient code. So code should not be lengthy. कोड जो है कम से कम लाइन में ज्यादा बेनिफिट वाला चाहिए, राइट? बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन, राइट? वी हैव जंप फ्रॉम दिस वर्ड स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन refers to your functional requirement specification, right? Then integrate software component and third party programs. So these are somewhat responsibilities of your development team. It means कि एक अगर सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, राइट, तो उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है? फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हो, तो वहां पे आप अगर देखते हो तो, या कोई भी वेबसाइट पे आप गूगल मैप देखते हो, राइट? पर्टिकुलर कंपनी अलग है जिसका वेबसाइट है और वहां पे गूगल मैप है, राइट? सिमिलरली पर्टिकुलरली किसी कंपनी का वेबसाइट है, वहां पे हम पेमेंट करने जाते हैं तो एक्सिस से करते हैं, राइट? SBI से करते हैं. तो ये हो गया थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, राइट? काइंड ऑफ. सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेम चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका डेवलपर, राइट? ओके, सो उसने बेसिकली प्रोग्राम डेवलप किया, तो उसको वेरीफाई एंड डिप्लॉय द प्रोग्राम्स इन अ सिस्टम, मतलब उनके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसको बिल्ड करने का काम भी कौन करते हैं? डेवलपर करते हैं. और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है? ट्रबल शूट, डिबग एंड अपग्रेड द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर. मतलब उनके लेवल पे भी वो छोटा मोटा यूनिट टेस्टिंग, लाइक इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. सो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? एज वेल एज सम ऑफ द केसेस में है ना, क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा टेस्टिंग का कोई स्कोप नहीं होता ना, वहाँ पे डेवलपर ही कई बार है ना टेस्टिंग भी करता है, राइट? सो इन दैट सिनेरियो डेवलपर को भी कस्टमर के साथ बैठ के या कस्टमर के साथ कॉल पे रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, राइट? सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका कंपनी छोटा है, बड़ा है, उसमें हर एक काम के लिए डिफरेंट पर्सन्स हैं. इट टोटली डिपेंड्स, बट आइडियली ऐसे सिनेरियोज रहते हैं. डेवलपर का मेन काम क्या होता है? रे, कोडिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट एंड उसका कोडिंग करना. ओके, सो लाइकवाइज दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर developer, right? So coming back to here, okay, next we'll discuss about the tester, right? Our profile. Okay,
so that you'll have some on a very high level idea about each role. Okay, so let me pull some of the points here. Fine. Okay. Okay, so see, from the tester side or from the QA team, right? We generally called it as QA, quality assurance. Okay, quality team, right? Quality testing team. Okay, so software testers' responsibilities are like reviewing the software requirement and preparing test scenario. Okay, so yes, I will be explaining here. Okay, यहाँ पे हम देखते हैं example. So like for first फर्स्ट क्या है रे, रिव्यूइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग टेस्ट सिनेरियो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है आपका बीआरडी या एफआरएस, इसको एज अ रेफरेंस लेके देखिए। आपका बीआरएस, इसको बीआरएस भी बोल सकते हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, एंड योर एफआरएस फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। राइट, इन दोनों डॉक्यूमेंट को रेफरेंस रख के हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें टेस्ट सिनेरियोस प्रिपेयर अप करने पड़ते हैं। राइट, टेस्ट सिनेरियो। ओके ओके, सो इसी एग्जांपल को समझते हैं। अभी फॉर नाउ देखिए, ये रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द बीआरडी, इसका थोड़ा टेक्निकल फॉर्म रहेगा आपका एफआरएस। राइट, उसके बेसिस पे डेवलपर क्या करेगा, उसका कोडिंग करेगा। ओके, वंस द सॉफ्टवेयर इज लाइक सॉफ्टवेयर इज रेडी, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, लाइक बिफोर गोइंग टू टेस्ट हमें क्या करना है, हमें भी अपने लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। राइट, सो इन सब लाइक बीआरएस और एफआरएस को रेफर करके हम क्या फाइंडिंग करेंगे, टेस्ट सिनेरियो। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट इज फॉर 2+2 एडिशन के लिए रिक्वायरमेंट है। राइट, तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। एडिशन में हम नंबर का एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 वैलिड है, सिनेरियो क्या है, एडिशन फीचर के लिए हम सिनेरियो है। राइट, सो इन दैट सिचुएशन हम एक सिनेरियो कैप्चर करेंगे फॉर एडिशन, जो भी फीचर रहेगा उसके अक्रॉस सिनेरियो कैप्चर करेंगे, और उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे रे, टेस्ट केस बिल्डअप करेंगे। टेस्ट सिनेरियो से हमें क्या बिल्डअप करना है, टेस्ट केसेस। ओके, टेस्ट केसेस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट में लिखा है कि 2 नंबर की एडिशन क्या होनी चाहिए, थर्ड नंबर होना चाहिए एज पर मैथमेटिकल रूल, वो करेक्ट भी होना चाहिए। लाइकवाइज हम क्या ट्राई करेंगे, 2+3 भी करेंगे। राइट, 2+3 बाय मैथमेटिकल रूल 5 आना चाहिए, वो भी चेक करेंगे। माइनस फॉर एग्जांपल 3 5, ओके, फॉर एग्जांपल -5 -3 +2, तो इसका लॉजिकल आंसर क्या आना चाहिए, -1। सो इस टाइप से हम पॉजिटिव निगेटिव सब एंगल से क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाएंगे। ओके, इसका स्कोप आपको थोड़ा आगे पता चलेगा। एज ऑफ नाउ आप ऐसा समझिए, जो भी बीआरएस एंड एफआरएस डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हम सिनेरियोज डिराइव करेंगे, एंड बेस्ड ऑन सिनेरियोज हम ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन के टेस्ट केस बनाएंगे। राइट, एंड फॉर दिस टेस्ट केस ये जो है ना, बेसिकली आपके नंबर्स वगैरह, नंबर्स वेरिएबल्स, ये आपका टेस्ट डेटा रहेगा। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी, टेस्ट डेटा। ओके, इसका स्कोप है, हमें इसका डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। अभी हम जस्ट ऑन अ हाई लेवल देख रहे हैं। राइट, ओके, ये हो गया वन ऑफ द पॉइंट, हमें टेस्ट सिनेरियो बनाने हैं, देन टेस्ट केसेस बनाने हैं, देन उसका टेस्ट डेटा जो चाहिए होगा फॉर अ पर्टिकुलर टेस्टिंग, वो भी हमें बनाना पड़ता है। राइट, एज अ टेस्टर। देन एक बार डॉक्यूमेंट बन गया, डेवलपमेंट टीम से ये प्रोग्रामिंग भी हो गया और पर्टिकुलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन भी बन गया। सो इन दैट सिनेरियो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस ऑन सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हमें पर्टिकुलर जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है वो स्टेप टेस्ट केसेस वहां पे क्या करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं। राइट, ओके फाइन। देन एग्जीक्यूट करते टाइम हमें जो भी मिसमैच मिलेगा एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल में, और जो हमारा एक्सपेक्टेड था, अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो हम सिंपली क्या रिपोर्ट करेंगे, डिफेक्ट, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से एप्लीकेशन नहीं वर्क हो रहा है। राइट, ओके,
सो लेटर ऑन जैसे ही वो लाइक कंप्लीट अप होता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तो एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट ऑन डेटाबेस इम्पैक्ट, एरर, बग्स एंड यूजेबिलिटी, मतलब हमारा मेन क्या काम क्या रहेगा, जो भी फंक्शनलिटी है उसको क्रॉस चेक करने का काम रहेगा। देन वंस वी डन विद द चेकिंग, तो हमें क्या करना है, सब चीजों का रिपोर्ट प्रिपरेशन करना है और प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट टीम एंड इन फ्रंट ऑफ अदर टीम, राइट? So these are the somewhat roles and responsibility for tester. बहुत सारे है guys, but यहाँ पे हम like सबका थोड़े बहुत roles and responsibility understand करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, right? So yeah, this is on the tester side. Okay, and one more role is left. Okay, later on I will take questions from you guys. ये आपको है ना समझना थोड़ा जरूरी है. Okay guys, keep on mute. Someone mic is unmute. Okay, ठीक है. DevOps, right? तो DevOps क्या है देखते हैं. Only few responsibilities we'll see. Okay, for DevOps. इनके काम से हमें ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन किसका क्या काम होता है, राइट? लाइकवाइज. ओके, DevOps मतलब है ना, ये कॉम्बिनेशन है योर डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन टीम्स का. ओके, ठीक है. इसमें डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट केपीआई. ओके, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है. एज ऑफ नाउ इतना मतलब जो भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं. देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग वेरियस डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, ऑटोमेशन टूल एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो भी चीजें लगेगी ऑन आईटी साइड. ओके, तो वो सब चीजों को हैंडल आउट करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं. देन प्लानिंग द टीम स्ट्रक्चर, ओके, एक्टिविटीज एंड इन्वॉल्वमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और कोई कॉमन टूल यूज कर रही है, जैसे मार्केट में जीरा है, ALM है, बहुत सारे टूल्स है, राइट? सो उस टूल को मैनेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. सो इनका मेन काम क्या रहेगा ना, जो आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट कहाँ पे होस्ट होती है, किसी सर्वर पे होस्ट होती है. नाउडेज सभी सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्लाउड पे लोकेटेड है. सो क्लाउड में कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर है जिनके नाम हमें पता होने चाहिए एटलीस्ट. ओके, गूगल, गूगल का क्लाउड है, राइट? देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड. ओके, एंड देन वी हैव Amazon क्लाउड, राइट? ये कंपनीज के नाम है. इनके क्लाउड के नाम क्या है, गूगल, गूगल का जो है GCP है, गूगल क्लाउड. ओके, गूगल क्लाउड. देन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको. माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये अजियोर है. ओके, एंड Amazon का जो है वो AWS है, राइट? सो ये पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनीज है. अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनीज और भी बहुत सारी कंपनीज है इन मार्केट. iCloud, यस, iCloud. बहुत सारी है, राइट? सो बट मोस्ट ऑफ द जो बड़ी कंपनीज ट्रस्ट करती है, तो इन्हीं कंपनीज के ऊपर करती है, राइट? सो इसीलिए मैंने जस्ट आपको नेम्स हाईलाइट किए. तो डेवऑप्स का मेनली काम क्या होता है ना, बेसिकली ये क्लाउड पे जो भी कंप्यूटर सेटअप है, वर्चुअल मशीन सेटअप है, उसको मैनेज करना, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो भी वेबसाइट चल रहा है, उसके अंदर जो भी डेटाबेस सर्वर चल रहा है, सब चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट? सो यस, दिस इज ऑन दी DevOps टीम. ओके, DevOps टीम और DevOps इंजीनियर, इनके बहुत अलग अलग नाम है गाइस. ओके, लाइक इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट नाम रहते हैं, लाइक बट DevOps इज द वन ऑफ द कॉमन नेम. ओके, and one more important role here is the technical person is responsible for your technical documentation, all kind of project documentation. Okay, he will be taking care for your documentation. And one of the important role, अगर आपके development team से कोई particularly senior developer आपके team से अगर सिस्टम आर्किटेक्ट नहीं बना रहा है, तो वो आपके टीम में कोई स्पेशल बंदा भी हो सकता है एज अ सिस्टम आर्किटेक्ट करके. इसका काम क्या है देखते हैं, इनका पर्टिकुलर रोल क्या रहेगा. सी, सिस्टम आर्किटेक्ट इट मींस फॉर एग्जांपल आपकी SBI ने जो भी रिक्वायरमेंट दी थी. ओके, हम एक बेस एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमें क्या चाहिए. फॉर एग्जांपल वेबसाइट चाहिए. ओके, हमें वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट में हमें 10 पेजेस चाहिए. ओके,
एक पेज पे होम पेज रहेगा, दूसरे पेज पे हम बैंक की इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, थर्ड पेज पे हम मतलब लिंक रहेंगे जिस पे क्लिक करके यूजर्स नेविगेट करता रहेगा, राइट। सो ऐसी रिक्वायरमेंट जो है, राइट, इसको जो स्ट्रक्चर देने का काम करेगा, कौन सा पेज कहाँ पे होना चाहिए, कौन सा पेज इंटरलिंक कैसे होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, इसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, ये सारा कुछ चीजों का डिसीजन कौन लेगा, आपका सिस्टम आर्किटेक्ट। एंड दिस वन इज द काइंड ऑफ सीनियर पर्सन who will be having knowledge about your front end, back end, server side। मतलब एक पर्टिकुलर वेबसाइट, एक पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन कैसे एंड टू एंड चलता है फ्रॉम वेरी स्क्रैच, मतलब जीरो लेवल से लाइक एंटायर प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना है, राइट। इसका ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल आइडिया किसको रहता है, सिस्टम आर्किटेक्ट को। सो ये पर्टिकुलरली डेवलपमेंट टीम को, टेस्टिंग टीम को भी गाइड करता है ऑन दी टेक्नोलॉजी साइड, राइट। ही इज अ टेक्निकल पर्सन, ओके। सो इसका ये मेन काम रहता है कि टीम के साथ सिंक करना, कौन सी कंपनीज में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करने, उसके बारे में अपडेट करते रहना, राइट। सम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट टीम में से ही कोई सीनियर पर्सन होता है, नहीं तो सेपरेट रोल भी होता है, राइट। सो या गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द टीम फॉर्मेशन, टीम में कौन रहेगा, हर एक का क्या क्या रोल रहेगा, क्लियर है। I'll be just okay, I'll be just stop pausing the this as well। Okay, so yeah, इसमें आपका क्वेश्चन था what is cloud, right? I will be writing here so that all guys will have clear understanding, right? So cloud समझने के लिए ना थोड़ा बेसिक से चलते हैं। Like see, previously हम काम करते थे डेस्कटॉप पे, as of now हम शिफ्ट हुए लैपटॉप पे, राइट। अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात करते तो मेन चीज कॉन्फ़िग साइड पे क्या आता है, यहाँ पे आपकी रैम कितनी है, हार्ड ड्राइव कितनी है, देन प्रोसेसर कौन सा है, राइट। Okay, so these are somewhat main parameters, right? Okay, these are the some common parameters, okay, RAM, hard drive, processor, okay। So basically अगर हम normal user की बात करते हैं तो 4 GB RAM रहेगा, right। 4 GB या 8 GB, 8 GB तक रैम रहेगा, गाइस प्लीज म्यूट, ओके। या 16 GB, एट 16 GB मैक्सिमम हो सकता है कोई भी एम्प्लॉयज का या पर्सनल कंप्यूटर में। हम अगर हार्ड ड्राइव की बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में प्रीवियसली कितना होता था, लाइक मुझे जितना पता है 180 GB से 80 GB से देखा है मैंने तो इन अ पर्सनल लैपटॉप, ओके। 80 GB, लेटर ऑन 160 GB आता है, राइट। ओके, लेटर ऑन इसका 250 या 250 GB आता है, राइट। देन 512 GB आता है, राइट। 512 GB आता है। देन वन, हम क्या बोलते हैं 1000 GB, 1 TB। यस 1000 GB, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 TB बोलते हैं, ओके। 1 TB मीन्स टेराबाइट। एंड लाइकवाइज 2 TB, 3 TB, 4 TB, ओके। अगर हम पर्सनल कंप्यूटर या कोई भी एम्प्लॉय की कंप्यूटर की बात करते तो वहां पे ये टाइप की रैम रहेगी और ये टाइप के हार्ड ड्राइव्स रहेंगे, राइट। और वन मोर इम्पोर्टेंट है प्रोसेसर, राइट। अगर हम प्रोसेसर की बात करते तो ओल्ड प्रोसेसर जो थे कौन कौन से थे, पेंटियम के थे, राइट। पेंटियम जो हमने यूज किए है, पेंटियम, ओके। ठीक है, स्पेल थोड़ा देख लो, ओके। पेंटियम के थे, इंटेल के थे बेसिकली, ओके। कंपनी का नाम डाल देता हूँ, इंटेल कंपनीज की थे, ओके। पेंटियम 4 था, P4 बोलते थे उसको, राइट। लेटर ऑन ड्यूल कोर आ गया, राइट। लेटर ऑन कोर टू डीओ आ गया, ओके। ये बेसिकली प्रोसेसर के नाम है, ओके, इंटेल कंपनीज के, ओके। कोर टू डीओ के बाद आपका कौन सा आ गया रे, लाइक i3 आ गया, ओके। i3 के बाद आपका i5 प्रोसेसर आ गया, देन i7 प्रोसेसर आ गया, देन i9 प्रोसेसर है अभी, राइट, मार्केट में। सो ये हो गए आपके प्रोसेसर। मतलब हम अगर पर्सनल लैपटॉप की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये सारे रैम्स रहेंगे, ये सारे हार्ड ड्राइव्स रहेंगे और ये सारे प्रोसेसर रहेंगे। सिमिलरली अगर किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोकल सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर मीन्स क्या, वो भी एक कंप्यूटर ही है, बस उसमें रैम क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल इसकी रैम हो सकती है 32 GB, ओके, डिपेंडिंग अपॉन उनकी रिक्वायरमेंट। 64 GB रैम की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, हार्ड ड्राइव नहीं, राइट। लाइकवाइज इनकी रैम ज्यादा रहेगी,
ओके। सिमिलरली डेटा स्टोर करना है तो इनका डेटा की जो साइज रहेगी वो भी बहुत रहेगी, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 10 TB लाइकवाइज, और ऐसे मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स होगी उसमें उसी सर्वर के अंदर। और अगर प्रोसेसर की बात करती है तो प्रोसेसर i5 i7 i9 ही रहेगा, लेकिन उसके कोर ज्यादा रहेगा, उसके अंदर कोर ज्यादा होते हैं। ओके, मतलब एट ए टाइम काम करने की, पैरेलल काम करने की उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसी प्रोसेसर की, तो उसको वहां पे क्या होते हैं, मल्टी कोर्स होते हैं, आपने ये शायद सुना होगा। ओके, मल्टी कोर्स होते हैं, जो प्रोसेसर होते हैं ना वो मल्टी कोर्स होते हैं, मतलब सेम प्रोसेसर मल्टीपल टास्क एट ए टाइम कर सकता है। तो ये हो गया आपका लोकल सर्वर, मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी में पड़ा रहेगा या पर्टिकुलर बैंक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रहेगा। अभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ये जो भी सर्वर है ये तो सभी एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे स्टोर कर पा रहा है, राइट। बट इन केस लाइट नहीं है, राइट, इन केस कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया तो ये पूरा कम्युनिकेशन ठप हो जाता है, राइट। तो ये लोकल यूजर वहां पे जो है वो, मतलब वो भी एक्सेस नहीं कर सकते, और इनके जो मल्टीपल बैंक के साइड से अगर सर्वर ही बंद है लोकल तो वो इंटरनली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। सो इन दैट सिचुएशन कंसेप्ट आता है क्लाउड का, वहां पे मेन रोल आता है क्लाउड का, राइट। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट है ना लोकल सर्वर में डिप्लॉय करके उसको इंटरनेट का कनेक्शन भी दे सकते हो, बट मेन चैलेंज क्या है, वो कंप्यूटर आपका 24/7 ऑन होना चाहिए, तभी आपके एंड यूजर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया लोकल सर्वर का रोल, जिसको हम इंटरनेट कनेक्ट करके उसी में भी डेटा वगैरह सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या चाहिए, एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, वहां पे 24/7 आपकी लाइट चाहिए, वहां पे 24/7 इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। सो सिमिलर फैसिलिटी जो भी आपके लोकल एनवायरनमेंट में होती है वो सिमिलर फैसिलिटी क्लाउड प्रोवाइड करके देता है। क्लाउड इज नथिंग बट इनके भी सर्वर रूम्स होते हैं, ओके, इनके भी सर्वर रूम्स होते हैं, इनके भी डेटा सेंटर्स होते हैं, आपने सुना रहेगा, राइट, इनके भी डेटा सेंटर्स होते हैं, जिसमें है ना सिमिलर, मतलब हाई हाई रैम वाले, हाई हार्ड ड्राइव वाले, हाई प्रोसेसर वाले कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स पुटअप किए होते हैं, ओके। एंड और इसका हम जो भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, जो भी डिप्लॉय करना चाहते हैं ना, इनके सर्वर में इंस्टॉल होता है, और उसका एक्सेस यूजर कहीं से भी कर सकता है, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। मतलब डिफरेंस समझा, ये भी काइंड ऑफ सर्वर ही है, आपका कंप्यूटर है, बट ये किसी दूसरे का कंप्यूटर है जो हम अपने काम के लिए रेंट पे लेते हैं। सो उसके डिफरेंट डिफरेंट परचेस मॉडल्स होते हैं, मैं आगे भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको मेनली डिफरेंस समझ गया दोनों में क्या है, पर्सनल कंप्यूटर में क्या है, लोकल सर्वर में क्या है, और क्लाउड सर्वर, इसको रिमोट सर्वर भी बोल सकते हो आप। क्लियर है गाइस। और ये ओके। प्रोवाइड करने वाली डिफरेंट कंपनीज है, जैसे बात की अमेजोन है, फेसबुक है, सॉरी अमेजोन है आपका, अजियो, माइक्रोसॉफ्ट है आपका, देन गूगल है, इनके खुद के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो हमें कुछ घंटों के लिए चार्ज करते हैं, जितना हम यूज करेंगे ना उतना चार्ज करेंगे। सिंपली आप ये समझ लो, जैसे प्रीवियसली हम साइबर कैफे में जाते थे, राइट, हमारे पास खुद का इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से नहीं था या ब्रॉडबैंड नहीं था, तो हम वहां पे जाके 10 रुपए दे के 20 रुपए दे के काम निकल लेते थे। इन अ सिमिलर मैनर हमारा जो भी काम है 24/7 अगर चलने वाला है, हाई रिचेबिलिटी वाला है, तो हम उसके लिए क्लाउड पे जाते हैं, मूव होते हैं, क्योंकि इसको मेंटेन करना इजी होता है एज कम्पेयर टू लोकल सर्वर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन गाइस? यस। हेलो। पॉइंट क्लियर है गाइस? ओके, तो ठीक है, देखिए लाइक क्वेश्चन था कि व्हाट इज फंक्शनल नॉन फंक्शनल, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखिए फोकस कीजिए ऑन फंक्शनल एंड फंक्शनल पार्ट ओनली। सो फंक्शनल में है ना, एज अ टेस्टर हम, मतलब एज अ टेस्टर या डेवलपर क्या क्या चीजें चेक होती है, देखिए यूनिट टेस्टिंग, योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक सैनिटी, ओके वन मोमेंट, दिस ऑल आर द टेक्निक। ओके, सो मेन क्या है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल,
ऑब्जेक्टिव मतलब इसका मेन पर्पस क्या है फंक्शनल टेस्टिंग का, टू वेरीफाई एंड वैलिडेट सॉफ्टवेयर एक्शन दैट डिफाइंस द प्रोसेस। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया है, कोई भी सॉफ्टवेयर का, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का एग्जांपल ले लो। ओके, उसका लॉगिन का फंक्शनलिटी क्या है रे, आपका अगर रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड है तो क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। दिस इज व्हाट द फंक्शनलिटी। ओके, एंड इन केस ऑफ नॉन फंक्शनल क्या है, टू वेरीफाई एंड वैलिडेट परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल फेसबुक बना है फॉर एग्जांपल 10 यूजर को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो 10 यूजर रिक्वायरमेंट ऐसी है फेसबुक की कि उनको फेसबुक बनाना है फॉर एक्सेसिंग 10 नंबर ऑफ यूजर, राइट। सो 10 नंबर ऑफ यूजर्स एट द टाइम उस पर्टिकुलर सिस्टम को, वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर एट ए टाइम 10 के 10 यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो उसका लॉगिन स्लो हो रहा है या लॉगिन ही नहीं होने दे रहा है, राइट। या 11th नंबर ऑफ पर्सन अगर लॉगिन करने के लिए कोशिश करता है तो एप्लीकेशन ही क्रैश हो रहा है, राइट। सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है ना, हम बोलते हैं ना कि वेबसाइट का स्पीड स्लो है, आज थोड़ा लोड लग रहा है, राइट। अरे ये पेज सही से लोड ही नहीं हो रहा है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन वो जो भी हम टेस्ट करते हैं ना, इट रिलेट्स टू योर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। बट फंक्शनल साइड पे क्या है, आपने प्रॉपर आपका जो वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड पुटअप किया तो आपका लॉगिन होना चाहिए। दिस इज व्हाट योर फंक्शनलिटी, एंड इन ऑर्डर टू वैलिडेट एंड वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट योर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। तो हम दोनों में फोकस किस पॉइंट पे करते हैं, देखिए फंक्शनल पार्ट पे वी कॉन्सेंट्रेट ऑन यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट के अक्रॉस हम जो टेस्टिंग करेंगे दैट इज व्हाट यूर फंक्शनल टेस्टिंग। मतलब फेसबुक का जो लॉगिन है उसकी फंक्शनलिटी क्या होनी चाहिए, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ लॉगिन होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यूर फंक्शनल टेस्टिंग। एंड नॉन फंक्शनल में हम फोकस क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट ऑन यूजर एक्सपेक्टेशंस। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड पुट अप किया ना, उसको विद इन अ सेकंड वो लॉगिन होने चाहिए। ये क्या हो गया, काइंड ऑफ यूजर का एक्सपेक्टेशन हो गया, उसको वेट करना नहीं पड़ना चाहिए, राइट। वो पेज किसी दूसरे टैब में जाके ओपन नहीं होना चाहिए। उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे यूजर नेम पुटअप किया है, पासवर्ड पुटअप किया और लॉगिन किया तो मुझे यहाँ पे फेसबुक ओपन होना चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर एक्सपेक्टेशन, राइट। मतलब यहाँ पे फंक्शनैलिटी वर्क होगी नो डाउट, बट वो कैसी वर्क होनी चाहिए एज पर यूजर एक्सपेक्टेशन, वो हम नॉन फंक्शनल में टारगेट करते हैं। ईज ऑफ यूज, मतलब फॉर एग्जांपल फंक्शनल में हम क्या चेक करेंगे, इजी टू एग्जीक्यूट ब्लैक बॉक्स टेस्ट। ओके, ये रिलेटेड टू टेस्टिंग है, एज ऑफ नाउ जस्ट स्किप करते हैं इसको। ओके, ठीक है। फंक्शनलिटी इस लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में। फंक्शनलिटी डिस्क्राइब्स व्हाट सिस्टम शुड डू। फंक्शनैलिटी मतलब क्या, अगर हम कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं बेसिक वाला, 2+2 फंक्शनैलिटी क्या है उसकी, 4 आनी चाहिए, राइट। ओके, सो एंड सेकंड डिस्क्राइब्स हाउ सिस्टम शुड वर्क। ओके, यहाँ पे बेसिकली नॉन फंक्शन में हम क्या मतलब डिफाइन कर देख चेक करते हैं कि ये काम लाइक डिस्क्राइब्स हाउ द सिस्टम शुड वर्क, सिस्टम ने कैसा काम करना चाहिए, राइट। ओके, तो दोनों का सिंपल डिफरेंस है, एक पे हम है ना फंक्शनलिटी पे फोकस करते हैं, 2+2 4 होना चाहिए, और नॉन फंक्शनल में कितने नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस करेंगे, यूजर को डिले मिल रहा है या यूजर को किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है क्या, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उस हिसाब से हम फंक्शनलिटी लेवल पे चेक करते हैं। एंड इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, मतलब हम फर्स्टली कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेटर ही किया या कोई भी हमने सेकंड लैपटॉप परचेस करने जाते हैं तो हम उसकी बेसिक फंक्शनलिटी चेक करते हैं, राइट। उसके कीबोर्ड सही से चल रहा है, उसका माउस सही से चल रहा है, उसका कैमरा सही से दिख रहा है, राइट। सो ये हो गया आपका फंक्शनल पार्ट, राइट। एंड लाइक नॉन फंक्शनल में उसका लुक एंड फील, उसका फंक्शनलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। लैपटॉप के ऊपर स्क्रैचेस है फिर भी आपका लैपटॉप रन होगा, राइट। सो नॉन फंक्शनलिटी मींस जो आपकी एक्चुअल कोर फंक्शनलिटी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए ड्यूरिंग टेस्टिंग हम फर्स्टली क्या चेक करते हैं, उसका फंक्शनलिटी एज पर रिक्वायरमेंट है क्या, लेटर ऑन हम नॉन फंक्शनल पे फोकस करते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ यूजर एक्सेस कर सकते हैं, वो लोड एक्सेप्ट कर रहा है नहीं, वो कहीं पे क्रैश हो रहा है क्या, राइट। उसमें
कुछ ब्लॉकर्स आ रहे हैं क्या, कुछ डिफिकल्टीज आ रही है क्या जब एट ए टाइम सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इस दोनों में। क्लियर है गाइस?